Hi guys, how are you? I hope you are fine. Today I'm going to discuss the some important queries, which is the query of almost every student of JK, JNK, and other states as well. There are some common queries of questions of every student among the following, which are the why we are going to prepare for JKSP JE exams, or how should we prepare for the exams of JKSSB, JE or JKPSC AE, which material we should follow for the same, and which are the good book or best book for practicing of the questions of the same exams. And the fourth question of every student is that which book we should follow or which material we should follow. So let us discuss in this particular lecture. Uh, so discussing the aspects of these two exams, mainly JKSSB and JKSSB and JKPSC exam. Firstly, this very particular lecture will be helpful for all the students of all states, which are civil engineering students. But particularly, I am discussing this very aspect for the students of JNK. So let us discuss the which books you should follow for the exams like JKSSB and JKPSC. Firstly, in case of JKSSB, we know all the students practice the very good book, which is Gupta and Gupta. Gupta and Gupta. This book is followed by every student of all states which are civil engineering students. This book is a very good book and is very good conceptual and standard questions are in this book. Secondly, the JKSSB J aspirants follow the second book, that is Khurmi. But in case of Khurmi, we should take care of some points. Firstly, there are some errors in this book. Some errors, mainly in questions, mainly not in questions but in answers of the questions. Mainly in answers of the questions. We should take care of that of the questions. Secondly, the theory in this book, I can say that the theory is very good. The theory is very good and confined, but you should also take care of the outdated data. Outdated outdated data are points which is in this book, because this is not the recent book. There are so many errors in that case. You should have to take care of that, and they will be going good if you are doing some searches on this book. That means you are if you are reading that book one to two time, uh, you will be good enough to find the errors in this book. Thirdly, I recommend that for every student of JKSSB which are going to prepare for JE exams, you should go for SSC PYQs, because this will be very, very helpful for your concepts as well, and also the different type of questions and varieties of questions which are asked for in this exam. This is a very, very good SSC PYQs. You should follow this. And fourth, I can recommend is that ESC PYQs. ESC PYQs. This is also important for all the students, because in this very particular, the questions which are which are asked in this ESC are very conceptual. I can say is that this is the concept concept booster for every student. If you are following the ESC POKs, your concept will be to the next level. It will take your concept to the next level. So this is very important. And because which you can say that the standard which are going to be followed or which are following this JKSB now,
JKSSB now, it is very important to go for this ESC PYQs, क्योंकि अगर आप ESC PYQs के लिए नहीं जाओगे अभी तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, क्योंकि जिस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर सेट करती है JKSSB, ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी बार जो इस टाइम पे आपके इस टाइम का जो क्वेश्चन पेपर आया था आपको एग्ज़ाम में, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आगे भी रहे, ये ज़रूरी नहीं है। मोस्टली प्रोबेबली जो अभी जो सेट किया था पेपर वो JKPSC ने किया था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वही सेट करे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिले, लेकिन आप हर किसी स्टेट में आप जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है वो कंसेप्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें आपके एक एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो उसके लिए ESC PYQs स्पेशली फॉर द JKSSB एग्जाम यू शुड गो मेनली फॉर द assertion and reason type of questions, assertion reason type, and those very particular questions which are going to be easy and conceptual, और जो आपको बड़े बहुत ही, अगर आपको ESC के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है या गेट के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है तो वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो जो काफ़ी बड़े हैं, जो आपको काफ़ी बड़े लगते हैं, जो आपको डाटा बेस्ड लगते हैं बहुत ज़्यादा, उनको आप छोड़ सकते हो। तो इसमें आपकी कोई फायदा नहीं है। तो मैं जो रिकमेंड कर सकता हूँ आपके लिए वो ESC PYQs आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए JKSSB JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद आती है आपकी टेस्ट सीरीज़, आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो करोगे। तो फॉर द सेम आप जा सकते हो किसी भी, चाहे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके पास जिसके पास आप ऑलरेडी आपके फ्री कुछ टेस्ट होते हैं उनको आप दे सकते हो, और उसकी बिहाफ पे आप उसकी लेवल देख सकते हो, और उसके बिहाफ पे आप उसकी तरफ जा सकते हो। और मेनली जो मैंने अभी तक देखा है, जो मोस्टली जो फॉलो करते हैं वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें ये इजी होता है और ये उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, और इसमें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर आप सारे एग्ज़ाम्स के लिए वैलिड होते हो। तो इसलिए ये अगर आप यहाँ से भी जाते हो टेक्स्ट बुक के भी लिए तो कोई टेंशन नहीं है, आप इजी जा सकते हो। लेकिन करना क्या है कि आप जो भी टेस्ट देते हो ना, उसके बाद थोड़ी एनालिसिस करनी है। जहाँ जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया और जो भी आपको लगा कि अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, यहाँ मुझे कुछ सीखने को मिला, तो आप क्या करोगे कि उसको आप प्रॉपरली नोट आउट करोगे। तो हो गई ये बात। तो टेस्ट सीरीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है। आप प्रैक्टिस से बहुत मोस्टली आप क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ पे जा सकते हो। तो ये हो गया आपका JKSSB। तो चलते हैं अब JKPSC की तरफ, जो मैंने बोला था आपको। ये जो JKPSC है आपका, तो JKPSC में आप देयर आर 2 काइंड ऑफ एग्जाम्स मेनली। फर्स्टली वी हैव AE एंड सेकेंडली वी हैव लेक्चरर पोस्ट्स। तो इन दोनों के लिए हमें एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे ESC हैं, ESC के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैंने काफ़ी सालों से 2-3-4 सालों से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है। फर्स्टली आपके पास यहाँ पे गुप्ता के लिए आप तो पहले जाते ही हो, गुप्ता एंड गुप्ता। फिर से मैं ये बताऊँगा कि दिस बुक इज़ वेरी गुड बुक एज़ फार एज द कंसेप्ट एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज़ कंसर्न। तो इस बुक के लिए आप जाओगे ज़रूर, क्योंकि इसमें आपके पास जो लास्ट में आपके डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ASC के भी होते हैं और दूसरे UPSC के क्वेश्चंस भी होते हैं, उनको आप लेके, वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस है। अगर आप AE के लिए पर्टिकुलरली जाओगे तो उनको आपको करना ही करना है, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंडली आप कहाँ पे जा सकते हो कि यहाँ पे आप ESC PYQs तो आपको करने ही करने हैं। यहाँ पे भी आप वो क्वेश्चंस छोड़ सकते हो जो आपको काफ़ी लंबे, काफ़ी डाटा बेस्ड, काफ़ी टाइम कंज्यूमर लगते हैं, उनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन करने ज़रूर हैं। असर्शन रीजन टाइप आपको ज़रूर करने हैं, और जो भी आपको कंसेप्चुअल लगे उसको करना है। उसके बाद यहाँ पे जो इन एडिशन टू दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन JKSSB JEE इज दैट यू हैव टू गो फॉर गेट क्वेश्चंस एज वेल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप गेट PYQs पे जाना है। गेट PYQs पे आप जब जाओगे आपको क्या करना है कि मेनली आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चंस करने हैं, 1 मार्क वाले, और जो भी आपको 2 मार्क वाला लगे कि ये इजी है, कंसेप्चुअल है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो अभी आप कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड
जो आपके वो फिल इन द ब्लैंक टाइप होते हैं, उस टाइप वाले क्वेश्चन जो बहुत ही लंबे क्वेश्चन होते हैं वो आप छोड़ सकते हो। और विद टाइम अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो या ईएससी के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे लेने हैं और कौन से छोड़ने हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग दिस preparation days and during these 3-4 years। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये बहुत, अगर आप ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी लंबी सी कोई PYQs वाली कुछ वही उठाओगे फिर उसको करोगे, तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और उतना आपको प्रोडक्टिव नहीं मिलेगा। अगर आप ये चीज़ें करोगे कन्फाइन भी रहोगे तो प्रोडक्टिव भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा ये। तो उसके बाद जो मेनली जो क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की कि हम कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले आपकी कॉन्सेप्ट तो क्या कह रहा था कि मैं आपको कि ये भी एक क्वेरी रहती है कि हम कौन सा मटेरियल फॉलो करें या कौन सी बुक्स फॉलो करें। तो जो मैंने पाया है इन 4 सालों में कि जो मुझे काफ़ी रिसर्च करने के बाद मिले ये बात कि अगर मैंने पहले की होती तो शायद काफ़ी फ़ायदा होता, लेकिन बाद में पता चला। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी बुक्स वगैरह बुक्स रिगार्डिंग जो ये होता है कि कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे हम, तो ये डिपेंड करता है पहले कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। फर्स्टली अगर आपको गेट या ईएससी, तो उसके लिए आप चाहे मेड इजी, चाहे IS मास्टर, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप जो पर्टिकुलरली फॉर गेट ईएससी के लिए बनाया गया हो, या कोई बच्चा जो है वो ऑलरेडी उसने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली है, तो वो उनको बता देते हैं कि आपको क्या करना है, वो तमाम गाइडलाइन उनको दे देते हैं। लेकिन अगर आप जो अभी हम डिस्कस करें JKSSB या JKPSC स्टूडेंट हो, तो मैं आपके लिए रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप क्या करो कि आप फॉलो करो IS मास्टर को। IS मास्टर, दिस विल बी द फर्स्ट रिकमेंडेशन एज फार एज माई एक्सपीरियंस कंसर्न। इसमें आपको क्या मिलेगा कि आप इसमें गेट ESC किसी भी AE JE एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकते हो और मटेरियल आपका सेम है, बुक आपकी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो फिर आप इसमें जो क्वेश्चंस देते हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन थ्योरी आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी कोई किसी को सूट करता है कि वो बुक्स पढ़े, किसी को सूट करता है कि वो कोई डिफरेंट मटेरियल ले ले, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो आप इस मिस्टर की मटेरियल से जा सकते हो या किसी भी टीचर्स के नोट से जा सकते हो, लेकिन इसमें जो आपको समझ में आए तो वो आप ले सकते हो। अगर आप कहोगे कि मेड इजी जो बहुत ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेते हैं मेड इजी, मेरे हिसाब से वो मेड इजी बेस्ट है फॉर द एग्ज़ामिनेशन लाइक गेट के लिए वो बेस्ट है, और काफ़ी हद तक वो ESC के लिए भी सही है। लेकिन फॉर द एग्ज़ाम्स JEE AE, इन एग्ज़ाम्स के लिए वो उतनी सही नहीं है। अगर आप कोई नया मटेरियल है जैसे मेडिजी ने बनाया है AE JE के लिए, मुझे उसका उतना नॉलेज नहीं है कि उन्होंने AE JE के लिए कुछ बनाया है, लेकिन जो मोस्टली जो मार्केट में होती है फॉर ऑल द PSUs गेट ESC वगैरह के लिए या AE स्टेट एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपको मेडिजी में उतना नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें थ्योरी कन्फाइन है। लेकिन आपकी जो JEE एग्ज़ाम्स होते हैं वो मोस्टली होते हैं अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, बहुत ही डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि इस बार तो अच्छा लेवल का पेपर था, कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छा पेपर था, लेकिन नहीं हो सकता कि हर बार आपको ऐसा ही पिछले एग्ज़ाम्स की तरह जो एग्ज़ाम जो डिफरेंट स्टेट्स में आता है या आता था पहले JKSSB में भी, उस टाइप का पेपर भी आगे आ सकता है। तो उसके लिए आपको बेस्ट रहेगा चाहे आप IS मास्टर की लो या किसी डिफरेंट की लो जिनने ऑलरेडी AE JE के लिए वो बुक्स बनाई हो, तो ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि आपके गेट एग्ज़ाम्स, कोई गेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है और इसमें आपको होता है कि क्वालिफाई द गेट एंड गोइंग अमंग द गुड, दैट इज व्हाट वी से इन अच्छी रैंक में आना, गुड रैंक में आना, पहले के 100 में, 200 में, 300 में, 400 में क्वालिफाई करना। आई कैन से दैट qualifying the gate is very easy as far as the qualify the
गेट एग्ज़ाम इज़ कंसर्न। लेकिन किसी को अंडर 100, 200, 300, 500 में आना है तो उसके लिए बहुत ही तगड़ी मेहनत चाहिए आपको, बहुत ही तगड़ी मेहनत। कम से कम लीस्ट आपकी 6 मंथ्स की प्रिपरेशन होनी चाहिए उसके लिए। और जो क्वालिफाई कोई बच्चा डरता है क्वालिफाई करने में, उसको मैं बता दूं कि क्वालिफाई गेट करना इज़ वेरी इजी एज़ फार एज कंपेयर टू एज जेई एंड ई एग्ज़ाम्स। उसको क्वालिफाई करना, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए आपको कम ही मार्क्स होने चाहिए। और उसमें आपकी मेनली अगर आपका एप्टी सही है, अगर आपका मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, 2-3 सब्जेक्ट्स भी आप 50 से लेके आप 30 से लेके 55 मार्क्स सब आराम से ले सकते हो अगर आपने कुछ 4 ही 5 ही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं विद एप्टी एंड मैथ। लेकिन जो भी आपके बाकी डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपने ज़रूरी है कि आप हर कोई सब्जेक्ट पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, और कंसेप्ट आपके सही होने चाहिए हर किसी सब्जेक्ट में। ये नहीं है कि आप गेट की तरह, अगर आपको गेट क्वालिफाई करना तो 3-4 सब्जेक्ट पढ़े आपने, बाकी नहीं पढ़े। इसमें आपको मेनली ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स और 1-2 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आपको हर कोई सब्जेक्ट्स विद प्रॉपरली पढ़ना होता है, क्योंकि आपका पर्टिकुलर वेटेज होता है हर किसी सब्जेक्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए और रहेगी भी। तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी हेल्पफुल रही है या कहीं भी किसी भी तरीके से फिर साबित हो सकती हैं, तो मैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और डिफरेंट जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो थैंक यू फॉर ऑल दिस। एंड अगर आपको आने वाले टाइम में मे बी जो डिफरेंट यहाँ पे जो केयर्स रहती हैं कि अगर यूट्यूब से पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो मे बी मैं भी इसके लिए कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले लूँ। और ऑलरेडी अवेलेबल बहुत ज़्यादा मटेरियल है यूट्यूब पे भी। उसके लिए अगर चाहते हो कि सेशन बनाऊँ कि कौन सा सही लगता है आपको, उस पर भी बना सकते हैं। और ख़ुद मैं भी सोच रहा था कि मैं डिफरेंट सेशंस लूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लूँ, और जो मैंने सीखा है वो दूसरों को भी सिखाऊँ। तो चलते हैं, थैंक यू। तो टिल देन वी कैन से गुड बाय। ओके।